Hello students, myself Rujan Biar. Welcome to eStudent platform. Today I am going to solve with a complete paper of a MSc entrance exam of a Delhi University. Okay, of a it's about a 2018 paper. Fine. So okay, let's start with the paper. So I think the introduction of myself was given. So let me start the section. Okay, first we can go with the first question. What the first question says: the halogen having a metallic character is. Okay, so when you read this question, you want to know what is a metallic character, right? What is metallic character? Metallic character is an ability of a metal. Okay, it is ability of a metal where it loses like losing of an electron. We can tell like see electropositive metals, right? Which means that which is very easy to lose the electrons, outer valence electron. ठीक है, उसको हम बोलते हैं वैलेंस मेटालिक कैरेक्टर. ठीक है, मतलब कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को इजी लूज होने वाला को हम बोलते हैं दे आर अ मेटल्स of a metallic character. Okay, fine. See, in now, as I told you that metallic character with a as size increases, what happens? As size increases, the distance between the nucleus and electron, also the gap between the nucleus and electron will also increase. So as the gap between the nucleus and electron increases, like there is no attraction between them. So like the electrons in the metal will be loosely bounded, right, to the nucleus, so that it can lose its valence electron easily. So as size increases, we can tell that metallic character also increases. Okay, now as they are asked about the halogen. So what is in halogen? Which is we can write first the size order. Okay, so order of a size we can write like first comes with the iodine is more greater in size, next with the bromine, and next with the chlorine, next with the fluorine. Okay, so in this, as I told you, as size increases, metallic character also increases. So it should be the iodine, right? Because iodine has a bigger size, so it can lose the electron easily. So it has a more metallic character. Fine, yeah. So iodine will be your correct answer. Normally, you have to see that the trend. Okay, trend for metallic character, trend for metallic character. Okay, the trend is that down the group. Okay, down the group, metallic character increases. Okay, fine. So now we can go with the next question. What does next question says? So next question says that let me cover this, okay, so that you guys won't get confused. Okay, or else if you want I can rub this also. Okay, fine, like I'll rub the part which I've written before so that you can copy it. Okay, so I do with the answer. So fine, now we can go with the second question. If the density of a hair is 1.2 gram per liter, what is the volume occupied by 7.8 gram of air? See, this is easy question. So there are two ways to do this question. So first way is that with the formula method, I just do with the first method. Okay, the first method with the formula method, and next with the generally normal like we can say unitary method. Like it's not a unitary method, yeah, we can call it as unitary method also. Normal like by taking a m1 like in we have seen in labs and all, we can write m1 v1 is equal to m2 v2, like that type of. Okay, by cross multiplying we can just find this also. So first with our formula I just go start with this. If the density of air is 1.2 gram per liter, so they are given the density is 1.2 gram per liter. What is the volume occupied by 7.8 grams? Means that
mass is given, right? So 7.8 grams. Okay. So they are asking what is the volume. Okay. So what will be the volume? So for volume, finding volume, we know the formula for density, right? Density is equal to uh, mass by volume. So we have to find the volume right now. So volume is equal to mass by density. Okay. So volume is equal to, what is the mass? Mass is 7.8 gram. So 7.8 gram. What is the density? Density is 1.2 gram per liter. Okay. So gram get cancelled, and this come out with a 6.5. Okay. So volume will be 6.5, as it's a per liter, so it becomes liter. So finally, because like you know that what is a per liter, it means that 1 by L, right? But it means 1 by L. So I just take to the upper way, so it becomes a 6.5 liter. Fine. Okay. So this is what the questions goes with a simple answer. That is see, in option they are mentioned with the 6.5 liter, right? Yeah, this is the answer. So I'll go with the second method, where you can solve it by a normal method. That is, see here, they're told that 1.2 gram per liter. So density of air is 1.2 gram per liter. It means that 1.2 gram in a 1 liter. Okay, so they're asking what is the value, one that what here, right? 1.2 gram in a 1 liter volume. So what is the volume occupied by 7.8 gram? So 7.8 gram is equal to dash, we can call it as X. So cross multiply it, you will get the answer of X into 1.2 gram is equal to 7.8 gram into 1 liter. So X is equal to 7.8 gram divided by 1.2 gram into 1 liter. Okay, so gram get cancelled. We'll come with the same answer, that is 6.5 liters. Okay, yeah, it's simple. So there are two methods where you can get the answer. This is a very simple question. Like see, the questions looks like a in different way, like you feel like it is typical, but it's not typical. It is very easy. You have to use your mind. Okay, fine. So we can go with the next question. So actually I forgot to mention, the thing is that while solving the numericals, just write the units also with that. If you write these units now, like if you write the units, see here, this unit, yeah, it will be very helpful for you. Like there will be some questions of unit conversion also, so it will be helpful for this. So while anytime by solving the numericals, just follow this by using the units and also by mentioning that also. Okay, fine. So I'll just go with the next question. Guys, fine. What is the next question? Which of the following statement is or true? Okay. Which of the following statement is or true? Okay. So in this, they're telling in option A, all of this. We can come to the last. Adsorption increases with increase in pressure. Obviously, adsorption. What is adsorption? Actually, adsorption is normally a which phenomenon? I know adsorption is normally which phenomenon? It's a normally a
Sorry guys for the disturbance. Uh, actually, the network was like fluctuating, and sorry for that. Okay, I was in the this question, right? Third question. Yeah, fine. I'm extremely sorry. Okay. Which of the following? I'll just come with the third question once again. Which of the following statement is or true? Okay. We can go with from B. Adsorption increases with increase in pressure. Okay, like normally while for going this question, first you should be know the normally theory concept, right? Like as you know that first question was also same theory concept, you should know with the theory basis. And next with the second question, it's a numerical type, like you have to know some formulas or like some things. But in third question, like you have to know the real theory behind what's going on. Like I can tell you that it's like a memory also, like you should be having some memory about this, like because like adsorption, we come with the physisorption and also chemisorptions, right? Yeah. So you should be knowing these things. So finally, in option B, they are giving that, telling that adsorption increases with increase in pressure. Yeah. As adsorption is a surface phenomenon, right? It's a surface phenomenon. Okay. It's a surface phenomenon. So if you increase in the pressure, the adsorption also goes on increasing. Okay, so this option is correct. Which of the following statement is true? They are asking which is true. Okay, this is true because like adsorption increases. Sorry, if the pressure increases, adsorption also increases. Next, adsorption decreases with increase in temperature. For this, there are two things. Like we should go with the normally we should go with the two concept for this. One is that chemisorption, and one more is the physisorption. Okay, physisorption. In this, chemisorption is there now. This chemisorption increases with increase in temperature, like increases with increase in temperature. But physisorption decreases with increase in temperature. Yeah, but in the question, they have not mentioned which sorption is this, right? They have told simply the adsorption. So if they have given like adsorption decreases or absorption increases with increase in temperature also, it doesn't matters. क्योंकि इसमें दिया है कि adsorption, if इसमें दिया था adsorption increases with increase in temperature, so it will be a chemisorption. But in this they are given that adsorption decreases with increase in temperature. इसका मतलब है कि ये physisorption होता है. ठीक है, ए भी ठीक है, ए भी गलत नहीं है, ए भी ठीक है, क्योंकि हमको उन लोग नहीं दिया कि इसमें physisorption है और chemisorption है. ठीक है, इसलिए तो ए भी हो सकता है. हम डी पे आएंगे. डी पे बोल दे कि adsorption is an exothermic process. हाँ भाई, ये तो पक्का ही है, adsorption तो exothermic process होना ही चाहिए ना, है ना? चल ठीक है, तीनों स्टेटमेंट भी ठीक है. सो हमारा ऑप्शन आता है कि ऑल ऑफ दिस. ठीक है, ऑल ऑफ दिस इज अ करेक्ट आंसर फॉर दिस. फाइन. अभी हम आएंगे किसके फोर्थ. ओके, फोर्थ वन क्या बोलता है? फोर्थ वन में पूछ रहा है कि which of the following spaces represent the example of a DsP2 hybridization. ओके, इसमें पूछा है कि DsP2 hybridization इस चारों में कौन सा होता है. ठीक है, पहला में कि Fe F6 3- चार्ज है. ठीक है, और FeCN 6 3- चार्ज है. NiCN 4 2- जिंक NH3 4 times 2+. इसमें आपको एक चीज ध्यान रखना है कि DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है ना, ये तो 4
मेंबर्ड लिगैंड के लिए होता है, ठीक है, मींस इट इज ओनली फॉर अ 4-membered ligand, right? There should be a 4-member, but say in option A, they have given a 6-member. Can you see it? Sorry, it was 6. Okay, it has given 6. In option B, even they have given 6, so it's common that for DSP hybridization there should be a 4-member ligand, but here they are given a 6-member, so these two are neglected. So this is not in a option, is not correct. Okay, so next we can go with the C. Before C, I'll come to the D. Okay, before C, I'll just do with the D. So what does D tell? See here, in a D, actually in a D, they have given a zinc, right? They have given a zinc with a 4 times of ammonia, with 4 ammonia. Okay. With zinc. Okay. Sorry. With the zinc, they have given a अमोनिया, ठीक है, उन्होंने अमोनिया दिया है। इसका मतलब क्या है? आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ व्हाट? जिंक। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होगा तो आप एक कर सकते, आराम से कर सकते हैं, क्योंकि जिंक 2+ मतलब कि आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर जिंक क्या होता है, मतलब कौन सा ऑर्बिटल में आता है, मतलब कि ये तो 3d10 4s2 है, सॉरी 3d10 4s2 है जिंक का, ठीक है। इसका मतलब कि +2 ऑक्सीजन स्टेट में 3d10 4s0 हो जाएगा। तो लिगेंड अप्रोच होता है कि कहां पे होता है, वेकेंट तो s ऑर्बिटल है और 4p भी वेकेंट है, ठीक है, लेकिन 3d वेकेंट नहीं है, इट्स नॉट वेकेंट, राइट? इट्स नॉट वेकेंट। Okay, 3d is not vacant, so ligand can approach for a 1s orbit, 4s orbital and a 3p orbital, so its hybridization will be sp3. Okay, so even the zinc will also not go with the, it is not a d2 hybridization, right? Not dsp2 hybridization, right? It's not. Okay, it's not d2 hybridization. So next we come with this. Next is the nickel, right? Okay, sorry. Yeah, nickel. Nickel cyanide 4. Okay, I'll just go with the nickel here. Nickel CN4 2-. So आप इधर देख लो, निकल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? नॉर्मली तो निकल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो 3d8 आ जाता है और 4s0 है और 4p भी 0 है, ठीक है, सॉरी 4s2 है, 4p भी 0 है, मतलब +2 ऑक्सीडेशन में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2 में तो 4s0 हो जाता है ना, 4s0 हो जाता है, ठीक है। अभी 4s भी खाली है, 4p भी खाली है और हमारे पास 3d8 है, मतलब कि one orbital is still empty in a d orbital. So as it is a strong field ligand, it go with a pairing, right? So we can just pair it. So there is a one vacant orbital and then s orbital, and we can consider then a 3p orbital, so 2p orbitals. Okay, fine. So we got a 1 d orbital and a 1 s orbital and a 2p orbital. So finally we get a dsp2 hybridization. Okay, dsp2 hybridization, fine. So हमारा आंसर होता है कि कौन सा वाला, ऑप्शन सी है, ठीक है, फाइन। अभी हम आएंगे 5th के ऊपर, करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अ एडेनाइन इन अ डीएनए बेस पेयर, ठीक है। अभी डीएनए बेस पेयर के ऊपर कौन सा कैरेक्टर, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा आता है? अभी ऑप्शन ए में पूछ रहा है कि both N3 and N6
NH2 ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, और उसके बाद बोथ N3 N6, मतलब बहुत सारा ऑप्शंस दिया है, लेकिन हमको इसमें क्या लेना देना है ना, हमको पहले एडिनाइन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, ठीक है। हमको एडिनाइन स्ट्रक्चर पता होगा तो हम सब कुछ कर सकते हैं, मतलब अब दिक्कत ही नहीं होता हमको। पहले एडिनाइन स्ट्रक्चर लिख लेंगे हम पहले, ठीक है, एडिनाइन स्ट्रक्चर लिख लेंगे इधर। नाइट्रोजन आता है, ठीक है। चल अब देख, ये एडिनाइन स्ट्रक्चर है ना, आपको पता होगा एडिनाइन स्ट्रक्चर, हमको एडिनाइन स्ट्रक्चर पता है। इसके पास तो लोन पेयर है, ठीक है, और इसके पास भी लोन पेयर है, और उसके बाद इसके सामने कौन सा होता है उसके ऊपर डिपेंड होता है कि अभी इसके, अभी तो आपको पता है कि एडिनाइन किसके पास पेयरिंग कर रहा है, मतलब पेयरिंग नहीं, किसके पास बॉन्डिंग कर रहा है, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके साथ करता है, ये तो थाइमाइन के पास ही है ना, थाइमाइन, ठीक है। अभी थाइमाइन का भी स्ट्रक्चर को लिख लो, और तो वो तो जरूरी नहीं, मतलब थाइमाइन का स्ट्रक्चर लिखना तो जरूरी, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कौन हाइड्रोजन एक्सेप्ट करता है, कौन हाइड्रोजन डोनेट करता है, ठीक है। रुक, आपको एडिनाइन, बस एडिनाइन चाहिए, थाइमाइन तो मैं नहीं लिख दूंगा, ठीक है, आपको कंफ्यूज हो जाएगा। अभी देख, इसमें नॉर्मली हम पहले लेबलिंग कर लेंगे इसको, कहां शुरू करेंगे, इधर से शुरू करना होता है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अभी देख, ये बॉन्ड है ना, एक तो लोन, इसके पास हाइड्रोजन है, ठीक है, इसलिए तो ये यूज नहीं कर रहा है, ठीक है, ये तो यूज नहीं कर रहा है, मतलब ये तो कहां पे हो रहा है, ये लोन पेयर से ना रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है, ये लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है, मतलब कौन सा लोन पेयर, ए वाला लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। इस ये तो ए वाला लोन पेयर एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, मतलब काम ही नहीं है, इसका लोन पेयर का काम ही नहीं है इधर। और इस लोन पेयर को देखो, ये रेजोनेंस में तो नहीं है, ये तो आउटर है, ठीक है। ये क्या करेगा, ये नॉर्मली किसी और के पास हाइड्रोजन एक्सेप्टार जैसे बिहेव करेगा, हाइड्रोजन एक्सेप्टार जैसे। और ये वाला नाइट्रोजन क्या करेगा, ये वाला नाइट्रोजन के पास तो हाइड्रोजन है, तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन डोनर होना चाहिए ना, हाइड्रोजन डोनर, ये तो डोनर जैसे काम करेगा। ये वाला क्या करेगा, ये वाला तो एक्सेप्ट करेगा भाई, एक्सेप्ट, ठीक है। बस ये तो सिंपल लॉजिक है। आपको नॉर्मली एडिनाइन स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, उसको लेबलिंग कर दो। उसके बाद आपको पता है ए वाला, मतलब फर्स्ट नाइट्रोजन, मतलब नंबरिंग, पहले वाला नाइट्रोजन नंबरिंग किया ना, वो वाला नाइट्रोजन तो एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि वो तो उसके पास हाइड्रोजन नहीं है डोनेट करने के लिए, तो वो क्या करेगा, एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा। और उसके बाद सिक्स्थ वाला नाइट्रोजन के पास क्या है, सिक्स्थ वाला नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन्स, मतलब लोन पेयर है, लेकिन वो तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन तो डोनेट करेगा। सो हमारा ऑप्शन में देख, हमारा ऑप्शंस में लिखा है बोथ N3 एंड C6NH2, मतलब C6NH2 मतलब कि ए वाला पार्ट है, ठीक है, मतलब C6NH2 मतलब ए वाला पार्ट है, ठीक है, C6NH2, और N1 मतलब कि ए वाला, ठीक है। अब इसमें पूछा है कि, बोला है कि बोथ N3 एंड C6NH2 आर हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर, नो, N3 नहीं है, N1 है, N1 होना चाहिए ना। और बोथ N3 एंड N6 आर हाइड्रोजन, ना, ए भी गलत है, ए भी गलत है। देख, अभी N3 इज एन हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर एंड N6NH2 इज एन हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर, नहीं भाई, ए भी नहीं हो सकता है, क्योंकि देख अभी पेयरिंग होना के, पेयरिंग मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड होने के लिए कि ना कुछ कंडीशंस होता है ना, कि स्टीरिक नहीं होना चाहिए। देख अभी N3 में क्या होता है ना, कुछ स्टीरिक हो जाता है इधर, है ना, कुछ स्टीरिक इंटरेंस होता है, लेकिन इसमें साथ नहीं करेगा, लेकिन तो ये तो फ्री है, फ्री एडेड है, ठीक है, ये तो इसमें कर सकते हैं, इसके मतलब कि ए भी गलत है। N1 देख, N1 मतलब कि यही N1 है, हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर करेगा, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है तो एक्सेप्ट करेगा। और उसके बाद N6NH2 इज एन हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर,
वाह वाह, ये तो सही है क्योंकि हाइड्रोजन एटम है तो डोनेट ही करना पड़ता है ना। बस हो गया डी। बस चले, हम चलेंगे 6th क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, क्या पूछ रहा है इसमें? पूछ रहा है कि केमिकल पोटेंशियल इज ऑल्सो नोन एज। ऐसा नॉर्मली पता है भाई, देख अभी केमिकल पोटेंशियल आना चाहिए ना। व्हाट इज केमिकल पोटेंशियल? केमिकल पोटेंशियल मतलब कि पार्शियल मोलर गिब्स फ्री एनर्जी होता है। ठीक है, पार्शियल मोलर एंट्रोपी नहीं होता है ना। एंट्रोपी एंथैल्पी ये तो कुछ नहीं होता है। केमिकल पोटेंशियल होता है कि गिब्स फ्री एनर्जी के लिए बस। ठीक है, ये तो याद रखना पड़ता है। ठीक है, ये ओनली फॉर पार्शियल मोलर गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है बस। और उसके बाद चलेंगे हम फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज मोर कोवलेंट। In 7th question, from the following, which is more covalent? Okay, so there is a condition for a covalent character. So it is at Fajan's rule, right? It should obey the Fajan's rule. Fajan's rule, okay? It's pronounced as Fajan's rule. So let me write here for you, okay? I don't want to make so. Okay, fine. Okay, Fajan's rule. Is it better? It is best for you. What is Fajan's rule? And actually in Fajan's rule, there are two conditions that like it's not a condition, like it's a property of that to make it a covalent. Okay, so like a cation should be small and anion should be large. Okay, this is a condition for a Fajan's rule. Okay, from this we have to find it that which, like if it forms a polarization, like if there is more polarization, like if the condition, like if the given options or in the question, if there is a option showing these kind of two things, then it is more polarized. It is more polarized and it is covalent. It is more polarized and it is covalent. Okay, so in this you can see that in the main thing you have to see here that Al2S3, ALN. See, structure of Al2S3, it go with the bridging structure, you know, like right. Sorry, Al2S3, right? Sorry. It's not a bridging structure. It normal. It forms a normal like ionic form. Okay, it's ionic. It's ionic. It's normally 2Al 3 plus and 3S2 minus. Okay, they got splitting in this way, and like this is ions formed. Okay, like this. But in Al2Cl3, it forms a normally a like a bridging. You know, like boranes, like they form a boranes like banana bond. Yeah, they're like that kind of form a for like a 3-centered 4-electron bond. Okay, this like see as option A, they forms ions in this way. And in option C, they form a banana like bond, like a 3-centered 4-electron bond. And even it's like this also forms like ions. But in this, the option B will be the right answer, as that aluminium forms a covalent. It has more covalency. Aluminium has a more covalent character, as it is a 3 plus charge and N a 3 minus. Okay, this anion formed here a larger, you know, as a charge. See the charge, because like charge is a 3 minus, right? It is more. So that the option B is a right answer for the more covalent character. Okay. Okay, fine. I hope you understood this. Okay. So now let me go with the 8th question.
So let me read once. The most probable candidate to form a octahedral complex is, okay. So which among the following will form an octahedral complex? So this, for this you have to know the only electronic like orbitals. See, I'll just show you everything. So it is a D10, D8, D8 low spin, and a D1. D1, okay. Look here. In a first, that is, we can go with a D10. Okay, D10 like completely filled here, right? It is completely filled here. And next go with a s orbital, and next a p orbital, and next with the d orbitals, right? 1 2 3 4 5. Okay, 5. 1 2 3, yeah, 5 orbitals. So it forms like 1 2 3 4 5 6. So it will be sp3 d2 hybridization. Yeah, we can tell that d2 can also form a sp3 d2, but the octahedral can be formed. But the thing is that, see, as a zinc, you know that zinc is completely filled, right? So zinc is completely filled, like a D10 is completely filled. Like it means that it has some power, like hindrance. Like you can tell that. Sorry. Wait. Yeah, I missed this point. I missed. Sorry. Actually, in this, the s orbital also contains a pair, because like they have not mentioned the oxygen state, right? Yeah, they have not mentioned the oxygen state, so it will be completely filled. Okay. Sorry, like it is completely filled here. They have not mentioned the oxygen state here, so it is completely D10. There is no except, like there is no oxygen state they have not mentioned. So it how many empty now? It only P, see, P3, and next it go with the D5 and all. It's this much is empty. Okay, this part is empty, but this part is filled, right? So it can't form a what, sp3d2 hybridization, right? Sp3d2 is for octahedral, right? So it can't form. So zinc, option A is also, option A, it's not possible to form a correct answer. So D10 is also not possible. Next we can go with the D9 high spin. What is D9 is possible with the D9 high spin? Sorry, D8 high spin. Yeah, we can just go with the D8 high spin first. D8 high spin. You know what is high spin means? It is containing with the weak field ligand, right? Weak field ligand. Okay, so we can go with the configuration of this weak field ligand. So like a spin pairing does not takes place here. Field here. Okay, at like D8, right? It's D8, like, yeah, it's at 8 electrons, and outer here it has a 2 electrons. Yeah, fine. So see here, it's not possible right here. The pairing, like it's not possible here. The octahedral forming is not possible here. Right? It's not possible here, right? Yeah. So this is not possible. So it can't form here. As you see, it is a weak field ligand. So there is no pairing takes place. So the S is completely filled. And the same case as like a zinc also, it is not possible. Fine. So now we can go with the next option. What does next option? Next option, I think it's a D8 low spin. Okay, fine. Like D8 low spin. Yeah, D8 low spin is interesting because like D8 low spin, there is a spin pairing takes place, right? In D8 low spin pairing takes place. So it will be very interesting. Okay. D8 low spin. 1 2 3 4. Okay. Low spin, like pairing takes place. Yeah, it has a vacant, and s orbital is filled next with the p orbital, and again we have a d orbital. Okay, d orbital. Okay, fine. So in a low spin D8, it is vacant. So what happens? These s orbital get transferred to this. So that what happens? So it come with a D10 completely. So here we get the empty s orbital, right? It was missing in all those two which we have seen. Like it was missing in a zinc. In a zinc, it was completely filled. So empty s orbital was missing, and in a
and in this D8, sorry, not in zinc, it actually in D10, and next in a D8 high spin, it was missing of s orbital, but in a D8 low spin, there is a empty s orbital. Due to this, what happens? Due to this, there is empty s orbital and a 3p orbital and 5d orbitals, so that it can make a octahedral complex very easily, right? sp3d2. Okay, fine. So we can't go with the same because like they're asking the which one among can go. There's still one more option, right? We can go with that. Because by seeing only these three, we can't tell, because like there may be chances. But in a D1, look in D1, you can just normally tell that, because like in a D1, like only one orbital is filled. In a 3D, in a 3D, only one orbital is filled. Sorry. And just clear it. Okay, 1 minute. Yeah. In a D1, only one orbital, only one electron is filled. So they're empty of how many d orbitals? There is empty of d4 orbitals. So it is, we are just confident that we sp3d2 is not possible here. Okay, so fine. The option is only the low spin takes place. Okay, I think you all got it. Fine. Okay, now we can come with the 9th question. Okay, what does 9th question tells? 9th question is telling that percentage of gold in 18 karat gold is. Okay, even this is simple. Like as I think in a second question, while forming like density and a mass and finding the volume, like that told you to do the second method, which was like a unitary type method. So we can go with the same method for here. Okay, like for 9th one, we can go with the same method. Okay. Yeah. Look here. Fine. 18 karat gold. Okay, they're telling that how many percentage is there in a 18 karat gold. So we all know that normally 24 karat gold is of 100%, right? 24 karat gold is of 100%. Okay, so we have to find only for 18 karat gold. What is the percentage? It's completely easy, right? अभी ना 24 कैरेट गोल्ड को हमको ये पता, क्योंकि है ना हम नॉर्मली गोल्ड खरीदते हैं, है ना, गोल्ड खरीदता है, मतलब कैसे खरीदता है हमने ना, नॉर्मली 24 कैरेट गोल्ड पे हमको 24 कैरेट इतना गोल्ड होता है, और रिमेनिंग होता है ना, वो तो पूरा कॉपर है, क्योंकि हम पूरा कंप्लीटली गोल्ड पे किया होता है ना, पूरा लाइक वो ऑर्नामेंट्स होता है ना, लाइक वो भी पूरा सॉफ्ट हो जाता है कि आर्ट नहीं होता है, इसलिए तो हमने गोल्ड विद कॉपर मिक्स करके और नॉर्मली आर्ट बनाता है। ठीक है, इसमें 24% है ना, वो तो मैक्सिमम है, इसमें हम गोल्ड ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ऐड और भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो तो गोल्ड ऑर्नामेंट के लिए तो नहीं हो सकता है, क्योंकि नॉर्मली गोल्ड के लिए तो स्टेबिलिटी कुछ चाहिए ना भाई, है ना, सॉफ्ट तो नहीं होना चाहिए, आर्ट होना चाहिए ना गोल्ड, it should be hard, right? So normally this is a maximum where it gives 100%. So now 18 karat gold, find a percentage. It's simple. Consider x percentage. So x into 24 is equal to 100 into 18 divided by, sorry, is equal to that much, and x is equal to 100 into 18 divided by 24. It comes out with normally 75%. ठीक है, बस 75%। इतना आसान है ना भाई, देख मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन हमको नॉर्मली दिमाग लगाना है, क्योंकि हम नॉर्मली हम सभी गोल्ड के बारे में सभी सुना है, इतना तो नहीं है ना, सभी को गोल्ड बारे में सुना है, तो कितना परसेंटेज गोल्ड हो सकता है, इतना परसेंट क्यों नहीं हो सकता है ना, नॉर्मल 24% तो गोल्ड होता है मैक्सिमम, 24 कैरेट गोल्ड होता है, इतना यूनिट्स होता है 100% पे। चल 18 पे कितना होता है, बस कैलकुलेट कर लो, बस हो गया। चल ठीक है, हम दूसरा क्वेश्चन देख लेंगे। अभी 10 अभी चलेंगे 10th वन। ठीक है, 10th में क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि which pair from the following behaves as a metalloids। नॉर्मली हम मेटालॉइड्स में बोलते हैं ना,
हमको नॉर्मली मेटालॉइड्स पता है कि कौन कौन मेटालॉइड्स होता है, कौन कौन नॉन मेटालॉइड्स होता है, कौन कौन नॉर्मली मेटल्स होता है, ठीक है। उसमें हमको देखना होता है कि पीरियोडिक टेबल में मतलब कि 8 to 9 हमने मेटालाइट्स पढ़ा है, लेकिन फिर भी हमको ये बात पता है कि सम आर रेयर मेटालाइट्स भी हो सकता है, सम में भी मतलब कि इर्रेगुलर रिकॉग्नाइज्ड मेटालॉइड्स भी हो सकता है, और कॉमनली रिकॉग्नाइज्ड मेटालॉइट होता है। मतलब ऐसे टाइप में बहुत सारा मेटालॉइड्स होता है, ठीक है। मैं आपको बोल लेता हूँ, मतलब सिंपल वे में बोल देता हूँ कि कौन सा मेटालॉइड्स हो सकता है, ठीक है। अभी एल्यूमिनियम एंड जिंक है, रुबिडियम सीसियम है, ब्रोमीन आयोडीन है, एंड प्लैटिनम आयोडीन है। सो नॉर्मली पीरियोडिक टेबल में हम देखा कि पी ब्लॉक साइड पे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, बिस्मथ, टेलुरियम, एसिटाइन, वो नॉर्मली मेटालॉइड्स है। लेकिन कॉमनली रिकॉग्नाइज्ड होता है ना पूरा, मतलब कि कॉमनली रिकॉग्नाइज्ड 4 टाइप्स होता है इसमें, मेटालॉइड्स में 4 टाइप्स होता है। हम तो इस बारे में पढ़ा है, लगता है कि इतना तो याद नहीं होता है ना। नॉर्मली ये तो याद रखने वाला टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें तो नॉर्मली कॉमन रिकॉग्नाइज्ड मेटालॉइड्स के बारे में बोल लेता हूं मैं पहले, ठीक है। लाइक कॉमनली रिकॉग्नाइज्ड मेटालॉइड्स होता है ना, वो बोरॉन है, कार्बन है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, और सेलेनियम भी होता है, और बिस्मथ भी होता है, और टेलुरियम भी होता है, पोलोनियम, एस्टेटाइन, ठीक है। ये नॉर्मली कॉमनली रिकॉग्नाइज्ड, सीआर मतलब कि कॉमनली रिकॉग्नाइज्ड, मतलब कि और दूसरा वेरी रेयर वाला मेटालॉइड्स होता है, वो उस हम बोलते हैं उसको हाइड्रोजन है, बेरिलियम है, फॉस्फोरस है, सल्फर है, गैलियम है, और टिन, हाइड्रोजन भी है, और लेड भी है, और बिस्मथ भी है, ठीक है। और उसके बाद नॉर्मली और होता है स्पोराडिकली, मतलब कि स्पेलिंग बोल देता हूं, मतलब कि ऐसे टाइप, मतलब इतना मेटालॉइड्स में ऐसे ऐसे टाइप्स डिफरेंशिएट बन चुका है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं स्पोराडिकली कैरेक्टराइज और रिकॉग्नाइज्ड मेटालॉइड्स बोलते हैं, ठीक है। मेरा प्रोनाउंसिएशन इतना अच्छा तो नहीं है, फिर भी तो आपको मन हो, आप कैसे भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली ये वाला रिकॉग्नाइज्ड पार्ट है ना, इसमें ओनली 3 ही मेटल्स आता है कि नाइट्रोजन आता है, जिंक आता है, और आयरन आता है, ठीक है, बस। और इसमें देख, अब में देख, ऑप्शन ए में एल्यूमिनियम जिंक है, बी में रुबिडियम है, सीसियम है, सी में बोरॉन सॉरी ब्रोमीन एंड आयोडीन है, और डी में प्लैटिनम एंड आयोडीन है। हम नॉर्मली देखा कि सीआर मतलब कि सीआर मतलब क्या है, कॉमनली रिकॉग्नाइज्ड है। कॉमनली रिकॉग्नाइज्ड में हमको कौन या मतलब कौन दिख रहा है हमको, नॉर्मली एल्यूमिनियम दिख रहा है ना, एल्यूमिनियम। हाँ, मतलब एल्यूमिनियम किस किस में है, वो तो ठीक हो सकता है, फिर भी हम दूसरा भी देख लेंगे, ठीक है। एल्यूमिनियम मतलब कि यही ठीक है, क्योंकि देख मतलब 2 चीज ठीक होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद वेरी रेयर में देख लेंगे, वेरी रेयर में हाइड्रोजन, बेरिलियम, फास्फोरस, सल्फर, गैलियम, स्टिन, आयोडीन, आयोडीन भी है ना, आयोडीन भी है भाई, आयोडीन भी है, देख। वो ठीक नहीं हो सकता, ये ठीक नहीं हो सकता है, बी सी नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं बोल सकते हम पहली ये वाला ऑप्शन देख के, ठीक है। पहला वाला एल्यूमिनियम देख के, ठीक है। अभी देख लेंगे आयोडीन, आयोडीन भी हो गया। उसके बाद ये वाला देख लेंगे, इसका रिकॉग्नाइज वाला कौन सा आता है, नाइट्रोजन, जिंक, आयरन आता है। इसमें देख जिंक आ रहा है, एल्यूमिनियम में भी जिंक है, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम एंड जिंक है, लेकिन सेसियम एंड रुबिडियम तो नहीं है, उसमें तो हम मेंशन ही नहीं किया। मतलब इस तीनों में ना 3 टाइप में होना चाहिए, ठीक है। देख अभी इसमें तो ऑप्शन ए आ जाता है ना, ऑप्शन है, ठीक है। आस्किंग पेयर मतलब पेयर होना चाहिए, एक ही हो जाता तो नहीं है, पेयर होना चाहिए, ठीक है, बस इतना ही है, सिंपल, ठीक है। एक्चुअली ये तो सिंपल नहीं बोल सकता है, लेकिन फिर भी ये तो काफी मतलब कि मेमोराइज्ड बेस्ड होना चाहिए, है ना। मतलब कि आपको पहली मतलब प्रैक्टिस होना चाहिए इसके बारे में, मतलब कि कौन सा मेटालॉइड्स होता है, कौन सा नहीं मेटालॉइड, मतलब कि आप ऐसे वाला क्वेश्चन को तो मतलब ज्यादा रिवाइज करके करके तो करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम 11th पार्ट कर लेंगे, 11th क्वेश्चन, ठीक है।
मैं इसको एरेस कर लेता हूँ, ठीक है। आप बाद में देख लोगे, ठीक है। और 11th one देख, for a substitution reaction following a dissociative mechanism, rate determining step, मतलब कि rate determining step पूछ रहा है किसमें, dissociative mechanism। डिसोसिएटिव मैकेनिज्म आपको पता है, डिसोसिएटिव मैकेनिज्म, एसोसिएटिव मैकेनिज्म। डिसोसिएटिव मैकेनिज्म होता है कि SN1 बोल सकते हैं ना हमने, है ना। SN1 मतलब कि, क्योंकि हम कार्बोकैटायन, मतलब कि हम इसमें दो अप्रोच हो सकता है कि ये वाला टाइप कोऑर्डिनेशन रिएक्शन मैकेनिज्म भी आ सकता है, और उसके मतलब ऑर्गेनिक भी कंसिडर कर सकता है और कोऑर्डिनेशन भी कंसिडर कर सकता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है। लेकिन इसमें हम कंसिडर कर लेंगे यही है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन रिएक्शन मैकेनिज्म। लेकिन हम इससे रिलेट कर लेंगे, ठीक है, इसको भी रिलेट कर लेंगे, ठीक है। अभी पहले देखो, डिसोसिएटिव मैकेनिज्म मींस it will go with the which TVP, right? Because like metal X5, right? X5 is like, X is a ligand, it can be a ligand, okay, it is a ligand, and M is a metal, okay, fine. X is a ligand and M is a metal, so it go with the TVP as a what, intermediate stage, or we can tell intermediate stage, okay. It go with the intermediate of a TVP, so it means that it is going to dissociation, right? Like I write a reaction also, it will be very helpful for you if I write a reaction here. देख, अभी ना रिएक्शन लिख लेता हूं मैं इसमें डिसोसिएटिव मैकेनिज्म का, ठीक है। ओके, डिसोसिएटिव मैकेनिज्म को रिएक्शन लिख लेता हूं मैं। अभी पहले मेटल विथ XY एंड Y इज अ लिविंग ग्रुप, ठीक है। Y इसको लिविंग ग्रुप होता है, और इसमें तो MX, उसके बाद हम दोबारा एडिशन ऑफ एनी, मतलब ये तो लिविंग ग्रुप है, एडिंग ग्रुप को मैं X ही लेता हूं, ठीक है। ये तो मतलब Y इज अ लिविंग ग्रुप एंड X इज द, what is X? Attacking group, right? Like nucleophile, I can tell the nucleophile, okay. So it will be MX6 finally, okay. So it is dissociative, मतलब कि 6 मतलब coordination number 6 to coordination number 5 पे जा रहा है, मतलब कि dissociate हो रहा है, मतलब कि Y is getting eliminated, मतलब कि like it's a slow process, मतलब this step is called a slow process. Rate determining step is a slow process, right? Because see, normally after it become MX5, there is a vacancy, so that the nucleophile like X we consider as like this nucleophile can come and attack very easily, right? Easily, okay. But breaking of this stable, like coordination number 6 is like completely stable, right? Like means like metal will having this and X Y, so it is stable. By going to the TVP, like its structure should be changed, right? Some energy will be lost and some energy will be gained, so structure is going with the TVP structure, right? Right, it goes to the TVP structure, okay. So some energy will be gained and some energy will be lost. So finally we can tell that it going with the rate determining step is this first process. First step is a rate step and second process is a normal step, okay. So rate determining step will be the slow process and the second step will be the fast process, addition of a nucleophile with this fast process. So they're asking that in a rate determining step, which one factor will be favored, okay. So we can come here, keep in mind that in a rate determining step, living group is living, okay. Living group depends only on the living group, okay. In rate determining step, it depends on the living group, okay. So we can see options also, so we won't get confused, right? So see, in options depend on the solvent concentration,
No, it does not depend. Like rate determining step does not depend on solvent concentration, because like you like why do we use solvent? Normally, like to neutralize, right? Like to neutralize, we use solvent. Like polar should be polar, and not like if it forms a carbocation, we use a polar solvent so that it can neutralize the cation and it can polarize. Like polarization takes place like to neutralize it. Then we go with the but this is wrong. Like that is solvent concentration doesn't depends. Next depends like it doesn't mean that it doesn't depends, but in rate determining step it does not depends. Okay, solvent concentration it depends after the rate determining step, because after the carbocation or the any charge is present, right? When that time we use a solvent concentration. Okay, depends on living group, obviously depends on living group. Next depends on entering group. नहीं, rate determining step में हम entering group के बात ही नहीं करते हैं ना, क्योंकि rate determining step पे slow process है, living group पहले निकलना है ना, ठीक है। उसके बाद ए भी गलत है। उसके बाद ऑप्शन डी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स। हाँ हो सकता है, लेकिन नेचर ऑफ द कॉम्प्लेक्स में डिपेंड नहीं होता है, क्योंकि देख नेचर ऑफ द कॉम्प्लेक्स की वो बोल रहा है कि अभी ऑक्टेडल हो और इट कैन बी मतलब कि टेट्राहेड्रल भी हो, कुछ भी हो, लेकिन उसमें डिसोसिएटिव एसोसिएटिव दोनों भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे नहीं कि रिडिटरमाइनिंग स्टेप में वो डिटरमाइन नहीं करेगा, लेकिन कर सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं कर रहा है। ठीक है, क्योंकि उसमें दो टाइप से आता है ना, ऑक्टेडल टेट्राहेड्रल में डिफरेंट टाइप ऑफ ज्योमेट्रीज है, वो सभी में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप को मतलब अलग अलग नहीं करता है। ठीक है, इसमें डिटरमाइनिंग स्टेप डिपेंड्स ओनली ऑन द लिविंग ग्रुप। ठीक है, ये भी गलत है, मतलब कि हमारा ऑप्शन है कि ओनली दिस। फाइन, depends on the living group. Okay, fine, depends on the living group. Okay, next we can go with the 12th one, the amino acid constituents of artificial sweetener given below are like artificial sweetener. Okay, like for this we have like we have to know with the artificial sweeteners are which among. Okay, so which are the artificial sweeteners should be known by you. Okay, so I just mentioned you that which are the artificial sweeteners. So normally L aspartic acid, and L phenyl alanine. These two are the artificial sweeteners. Okay, like इसको याद रखना पड़ता है, क्योंकि ये ना नॉर्मली स्वीटनर्स मतलब एक तो पूछ लेता है। ठीक है, मतलब कि सभी क्वेश्चन में मतलब सभी क्वेश्चन में कॉन्सेप्चुअल बेस नहीं हो सकता, क्योंकि कोई क्वेश्चंस तो याद करना होता है, कोई क्वेश्चंस नॉर्मली कॉन्सेप्चुअल लाइक, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज्यादा क्वेश्चंस याद करना तो नहीं देता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो कितना वो मतलब इधर नॉर्मली नाम से मतलब कि इसमें तो नेचुरल प्रोडक्ट्स में आ सकता है। ठीक है, इसमें तो नॉर्मली नेचुरल प्रोडक्ट्स में मतलब कि कार्बोहाइड्रेट्स में, अमीनो एसिड्स में केवल कुछ क्वेश्चंस कुछ होता है कि इसको याद करना जरूरी होता है। ठीक है, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स है कि एल एस्पर्टिक एसिड एंड एल फिनाइल एलानाइन। ठीक है, 12th का ऑप्शन सी है। ठीक है, बस उसके बाद दोबारा दूसरा चलेंगे हम 13th के ऊपर। ठीक है, 13th क्वेश्चन। हाँ, अभी देख 13th क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच वन इज इनकरेक्ट। ओके, आपको पूछ रहा है इनकरेक्ट कौन सा है, करेक्ट कौन सा नहीं, इनकरेक्ट मतलब देख अभी है ना नॉर्मली हमने क्वेश्चन देखने टाइम पे क्या क्या सोचा कि मतलब पूरा इतना कॉन्फिडेंस होता है, मतलब इस कॉन्फिडेंट नहीं बोलते, ओवर कॉन्फिडेंस बोल सकते हैं, क्योंकि ऐसे देखने के टाइम में ना इनकरेक्ट भी छोड़ के हम करेक्ट लेता है, मतलब कि इसमें विच वन इज इनकरेक्ट दिया है, लेकिन इतना अरीब पे मतलब कि मुझे को सब कुछ पता है, मतलब ऐसे सोच के मतलब पता है नहीं कि मुझे को पता है मैं कर लेता हूँ, मतलब ऐसे इतना हरी भरी में हम क्या करते हैं कि इनकरेक्ट को करेक्ट सोच के हम करेक्ट कौन सा लगा मतलब पहले देखेंगे। ऑप्शन ए क्या है, एटॉमिक रेडियस ऑफ जिरकोनियम एंड एफिनियम आर सेम बिकॉज ऑफ द लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन। ये तो ठीक है, बस एक तो मतलब इतना चार में ना, ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन है, सेलेक्ट ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट नहीं है। ठीक है, एक ही करेक्ट होना चाहिए।
तो एक ही तो लगाएंगे, बस काम हो गया, है ना। ऐसे तो गलती हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे वाला टाइप गलती नहीं नहीं करना है, ठीक है। नॉर्मली आपको शांति से एक बार क्वेश्चन दोबारा एक बार, मतलब इधर छोटा तो क्वेश्चन ही है ना, मतलब आपको 10 सेकंड भी नहीं लगता है 2 बार पढ़ने के लिए। इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच वन इज इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है। देख, पहला वाला तो एटॉमिक रेडियस ऑफ जिरकोनियम एंड एफिनियम आर सेम बिकॉज ऑफ लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। सॉरी, एटॉमिक रेडियस ऑफ जिरकोनियम एंड एफिनियम आर सेम बिकॉज ऑफ लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। हाँ, ये तो सही है भाई, क्योंकि लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से है ना, ये तो मतलब साइज सेम हो रहा है, ठीक है, ये तो सही है। उसके बाद LaOH3 is less basic than LuOH3 OH thrice, ठीक है। मतलब ये देख लो, नॉर्मली हमने ये चीज देखना होता है कि कौन सा ठीक है कौन सा गलत है इसमें, क्योंकि इसमें हमको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स तो पढ़ना तो जरूरी होता है। इसमें कौन सा है, नॉर्मली लैंथेनाइट OH3 एंड लुथेनियम OH3, ठीक है। इसमें लैंथेनाइट का है ना लेस बेसिक है, ठीक है, ये तो लेस बेसिक है, लैंथेनाइट है लेस बेसिक है। इसके रीजन क्या हो ना कि बेसिक कैरेक्टर हो ना, वो नॉर्मली बेसिक कैरेक्टर है ना, ड्यू टू अ कोवेलेंट कैरेक्टर इन लुथेनियम एंड OH बॉन्ड ना, इसके लिए इसके वजह से लाइक कोवेलेंट बॉन्ड के वजह से ये लेस बेसिक होता है। कौन सा, लैंथेनियम, ठीक है। लुथेनियम तो मोर बेसिक होता है, ठीक है। ये तो ठीक है, मतलब कि ये तो ऐसे बोला है कि ऐसे होता है, ले लेंगे इसको भी करेक्ट ले लेंगे पहले, मतलब कि इसको मुझे को डाउट लग रहा है कि ये होता है नहीं होता है, फिर भी देख लेंगे, ठीक है। लेकिन नॉर्मली तो बेसिक कैरेक्टर की वजह से लुथेनियम तो लेस बेसिक होना चाहिए, ठीक है। देख रुक एक मिनट, दोनों भी देख लेंगे, ठीक है। लैंथेनियम इज एक्चुअली एन एलिमेंट ऑफ अ ट्रांजिशन सीरीज रादर देन लैंथेनाइट्स। हाँ, ये तो सही है भाई। एक्चुअली लैंथेनियम मतलब लैंथेनियम सीरीज बोलते हैं कि मतलब कि लैंथेनियम भी एफ ब्लॉक में आना नहीं जरूरी नहीं है ना। हाँ, उसके बाद लैंथेनाइट सीरीज, आयनिक रेडियस ऑफ लैंथेनाइट आयन डिक्रीजेस, ऑब्वियसली ये तो डिक्रीज होता है ना भाई। हाँ, ठीक है, ये भी सही है, मतलब कि ए वाला तो गलत है, क्योंकि ना साइज मतलब साइज ज्यादा हो गया तो इसका बेसिसिटी कम हो रहा है, बेसिक कैरेक्टर कम हो रहा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप्स। नॉर्मली हमको बेसिक ऑर्डर क्या होता है भाई, डाउन द ग्रुप होता है कि साइज ज्यादा बढ़ रहा है, मतलब डोनेटिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो रहा है, मतलब ऐसे सोचता है। लेकिन इसमें तो क्या हो रहा है कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप्स, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप, इसका बेसिसिटी कम है, मतलब कि ल्यूथेनियम इज लेस बेसिक होता है, ठीक है। लेस बेसिक मतलब कि इसका आंसर है कि ऑप्शन बी है, ठीक है। मतलब कि ए तीनों करेक्ट है, ये तो गलत है, मतलब उन लोग गलत ही पूछे है ना। चल ठीक है, बस ऑप्शन बी है। उसके बाद हम चलेंगे 14 के ऊपर, ठीक है। 14 के लिए हमको स्ट्रक्चर लिखना तो जरूरी है, क्योंकि उसमें ही आता है कि स्ट्रक्चर्स में ही कुछ गड़बड़ हो सकता है, और उसमें भी कुछ हमारा रिजल्ट रिजल्ट कम आ सकता है, ठीक है। डाइक्रोमेट डाइएनियन, डाइक्रोमेट डाइएनियन, हाँ। डाइऑन मतलब कि क्या है, मतलब दो नेगेटिव चार्ज है ना, टू नेगेटिव चार्ज। डाइक्रोमेट मतलब कि Cr2O7 2 ये फॉर्मूला, इसका स्ट्रक्चर बना लेंगे हम। क्रोमियम, इसको नेक्स्ट ईयर बना लेता हूँ, कंजेस्टेड फील हो जाएगा वरना तो, ठीक है।
देखो इधर, मतलब कि क्रोमियम का स्ट्रक्चर बना लेता हूँ पहले मैं। क्रोमियम का स्ट्रक्चर नॉर्मली 12 बॉन्ड है, नीचे भी डबल बॉन्ड है, और एक एनायन उधर है और एक एनायन इधर है। बस हो गया, 7 हो गया क्या? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। देयर आर 7 ऑक्सीजन्स, ठीक है, 7 ऑक्सीजन्स एंड 2 क्रोमियम्स एंड 2 नेगेटिव चार्ज। ओके फाइन, सी वो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है? अब क्वेश्चन में पूछ रहा है इन द डाइक्रोमेट डायनियन features. What are the features here? The 3 chromium O bonds are equivalent, 6 chromium O bonds are equivalent, all CrO bonds are non-equivalent, CrO bonds are equivalent. देख लो, इसमें हमारा रेजोनेंस का काम आता है। इसमें नॉर्मली रेजोनेंस क्यों आता है भाई? देख, नॉर्मली देख, अभी लग रहा है कि ए बॉन्ड और ए बॉन्ड सेम है, मतलब ऐसे लग रहा है ना। देख, ए वाला बॉन्ड सेम है, और ए वाला मतलब और ए वाला ए वाला ए वाला सेम है, मतलब कि दो टाइप ऑफ बॉन्ड, टू टाइप ऑफ बॉन्ड जैसे लग रहा है ना। नहीं, ये तो गलत है, क्योंकि हमको पता है कि इसमें रेजोनेंस हो सकता है ना। हमको पता है इसमें रेजोनेंस हो सकता है। किसमें? क्रोमियम Cr2O7 2 माइनस में, क्योंकि इसमें तो नेगेटिव चार्ज है और डबल बॉन्ड्स भी है ना। कैसे रेजोनेंस हो सकता है? देख, अभी नेगेटिव चार्ज उधर है, दिस कम्स हियर, एंड एक स्ट्रक्चर ऐसे वाला स्ट्रक्चर हो गया, और दूसरा स्ट्रक्चर तो इसके ऊपर डबल, ए भी डबल बॉन्ड हो गया, ए भी डबल, ऐसे ऐसे, मतलब कि अभी कितना ऑक्सीजन है, मतलब 6 टाइप्स, मतलब 6 बार रेजोनेंस हो सकता है। 6 टाइम्स रेजोनेंस हो सकता है, ठीक है। 6 टाइम्स रेजोनेंस हो सकता है, मतलब कि ये एक बॉन्ड है ना, ये 6 बॉन्ड, मतलब ऑक्सीजन के साथ क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड है ना, एक क्रोमियम ओ बॉन्ड, ऑल आर इक्विवेलेंट, ऑल आर इक्विवेलेंट, मतलब कि 6 बॉन्ड सब भी इक्विवेलेंट है, ठीक है। और हमको पूछा है क्रोमियम ओ बॉन्ड, ऐसे नहीं क्रोमियम ओ बॉन्ड, ए बॉन्ड अलग है, ठीक है। ऐसे हम नहीं देखते कि ये दोनों है, इसको इसको कंसीडर कर, ऐसे नहीं है। ए तीनों, ए दूसरा टाइप बॉन्ड है, ए दूसरा टाइप बॉन्ड है। हमको पूछा है ए वाला टाइप में नॉर्मली 6 बॉन्ड, 6 हाइड्रोजन, 6 ऑक्सीजन कनेक्ट हो ना, वो वाला क्या होता है, ठीक है। हाँ, इसमें पूछा है कि क्रोमियम ओ बॉन्ड्स आर इक्विवेलेंट, 6 क्रोमियम ओ बॉन्ड्स आर इक्विवेलेंट। हाँ, वही तो है ना, 4 तो नहीं है, ये तो गलत है। 6 ए भी गलत है। ऑल सीआर बॉन्ड्स, ऑल दी सीआर ओ बॉन्ड्स आर नॉन इक्विवेलेंट, नहीं इक्विवेलेंट है, ये ठीक है, ठीक है, मतलब ऑप्शन बी ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे 15 के ऊपर। वैक्यूम इज मेजर ऑफ, अरे भाई, ये तो कितना आसान क्वेश्चन है, हम तो पता है ना। वैक्यूम क्लीनर से क्या कर सकते हैं भाई हम? डस्ट क्लीन कर सकते हैं ना, कैसे? उसमें ऑयल आता है क्या वैक्यूम क्लीनर के अंदर? ऑयल से क्लीन कर सकते हैं हम डस्ट? नहीं। मॉइस्चर आता है क्या? नहीं, वो भी नहीं है। एम्प्टी, मतलब हाँ, वो तो पता है, मतलब कि एम्प्टीनेस है, मतलब वैक्यूम क्लीनर के अंदर तो पहले ऑन करने के पहले एम्प्टी था, ऑन करने के बाद देखना होता है ना, ऑन करने के बाद ही हम बोलते हैं ना वैक्यूम क्लीनर है, पहले तो ऐसे ही तो इक्विपमेंट होता है बस। वैक्यूम मेजर्स द लीकेज रेट ऑफ अ हेयर, मतलब कि उसके पास हेयर होता है, मतलब कि ऐसे नहीं कि लीकेज है, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि नॉर्मली वैक्यूम क्लीनर क्या करता है। नॉर्मली तो एयर के ऊपर प्रेजेंट होता है ना वैक्यूम क्लीनर, एयर का काम ही करते हैं ना। आपको इसका फंक्शन नहीं पता होगा, फिर भी नॉर्मली घर पे देखा कि वैक्यूम क्लीनर क्या करता है, उससे ही हम पता चल जाता है कि एयर के बेस है, बस यही तो हमारा कोड है। एयर, मतलब कि इसका आंसर है कि लीकेज रेट ऑफ अ हेयर को देखता है वैक्यूम, ठीक है, बस। उसके बाद 16 क्वेश्चन पे चलेंगे हम। द प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर ए इन अरेनियस इक्वेशन डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग। इसको नॉर्मली अरेनियस इक्वेशन पता है ना सभी को, k इज इक्वल टू ए ई पावर माइनस ए बाई आर टी, है ना। k क्या होता है? k तो रेट होता है,
ये क्या होता है? ये तो एक्टिवेशन एनर्जी है। एक्टिवेशन एनर्जी है। और आर तो गैस कांस्टेंट है और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। टी तो टेम्परेचर है, ठीक है, टी तो टेम्परेचर है, आर तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। और ए क्या है? ए ही अर्नियस इक्वेशन है, मतलब कि प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, यही तो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है ना? ये तो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ठीक है, ये तो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है। बस अभी देख, अभी क्वेश्चन देख लेंगे हम। बस इतना तो याद है हमको, अर्नियस इक्वेशन याद होना चाहिए। बस इसमें पूछा है कि प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर ये इन अर्नियस इक्वेशन डिपेंड्स ऑन द विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। देख लो, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ द रिएक्शन, ये भी नहीं है, क्योंकि देख नॉर्मली ये डिपेंड्स होता है कि कोल्यूशन फ्रीक्वेंसी ऊपर है, ठीक है, मतलब कि कोल्यूशन फ्रीक्वेंसी मतलब कि कितना कोल्यूशन, मतलब देख एक दो मॉलिक्यूल्स है, मतलब कि दो दो एटम्स है, ठीक है, उन दोनों कोल्यूशन करने के बाद है ना एक्टिवेशन आता है। पहले तो एक्टिवेशन नहीं होता है ना, पहले इतना मतलब इतना कोल्यूशन होना चाहिए, मतलब उस कंडीशन होता है, मतलब इसका सिमेट्री सेम होना चाहिए, इतना दूर तक इतना टच होने के बाद तो कोल्यूशन होता है, इतना ही है बस, ठीक है। अभी देख गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन नहीं, इसके ऊपर भी डिपेंड नहीं है, गिब्स वो भी नहीं है, नन ऑफ दिस भी नहीं है, कोल्यूशन फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, ये तो अर्नियस इक्वेशन का ये एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, ठीक है, कोल्यूशन फ्रीक्वेंसी है। आपको पढ़ा होगा केमिकल काइनेटिक्स में, तो ये तो नॉर्मल चीज है, हमको पता ही है। उसके बाद चलेंगे मेटलर्जी का क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ ईटिंग द कॉन्सेंट्रेटेड ओर इन अ लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज नोन एज, और इन द एब्सेंस ऑफ एयर मतलब कि ये पूछ रहे कि प्रोसेस चल रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड ओर का प्रोसेस चल रहा है, कैसे? विदाउट इन द एब्सेंस ऑफ एयर और द विदाउट सप्लाई ऑफ एयर, मतलब कि हम एयर यूज नहीं कर रहा है, ऐसे वाला रिएक्शन, मतलब ऐसे वाला ओर को कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, इसको कौन सा प्रोसेस बोलता है? नॉर्मली हम बोलते हैं कि कौन सा प्रोसेस है, इसको हम बोलते हैं कि कैल्सिनेशन, ठीक है, क्योंकि देख नॉर्मली कैल्सिनेशन में हम एब्सेंस ऑफ एयर करता है कि रुक मैं इसको दिखाता हूं इधर, ठीक है, एब्सेंस ऑफ एयर, एब्सेंस ऑफ एयर में हम कैल्सिनेशन करता है, ठीक है, कैल्सिनेशन। प्रेजेंस ऑफ एयर क्या बोलता है? प्रेजेंस ऑफ एयर को हम बोलता है रोस्टिंग, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ एयर बोलते हैं हमने रोस्टिंग, ठीक है, ये तो रोस्टिंग नहीं है, हम तो एब्सेंस ऑफ एयर है, प्रेजेंस ऑफ एयर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट लीचिंग तो नहीं है भाई, लीचिंग तो दूसरा चीज है, लीचिंग तो लीचिंग भी कॉन्सेंट्रेशन करने और को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए यूज करता है, लेकिन तो एब्सेंस ऑफ एयर में ओनली तो कैल्सिनेशन ही होता है, ठीक है, बस। उसके बाद चलेंगे 18 क्वेश्चन, ठीक है, 18 क्वेश्चन क्या पूछ बोल रहा है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक transitions leading to rotation of a molecules will appear at which region of a electromagnetic spectrum। हाँ भाई, ये तो अच्छी ये क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है ये तो, मतलब कि आपको नॉर्मली स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ा होना चाहिए कि अल्ट्रावायलेट का यूज क्या होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी का यूज क्या है, इंफ्रारेड का यूज क्या है, माइक्रोवेव का यूज क्या है, मतलब उसका यूज क्या होता है और उसका मैकेनिज्म क्या होता है, वो सब कुछ पढ़ना तो जरूरी है। इसमें तो इजी क्वेश्चन है ये। देख अभी मैं कॉलम में लिख लेता हूं कि वो चारों का, ठीक है। अभी पहले से शुरू करता हूं माइक्रोवेव से, ठीक है। माइक्रोवेव किसमें यूज करते हैं भाई? इसको यूज करते हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पे, रोटेशन, हम यूज कर रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पे, ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे आईआर, मतलब इंफ्रारेड, इंफ्रारेड यूज करता है कि वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा में,
ठीक है। और उसके बाद चलेंगे हम रेडियो फ्रीक्वेंसी चलेंगे। रेडियो फ्रीक्वेंसी में एनएमआर, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, ठीक है, आप सभी सुना होगा एनएमआर को, ठीक है, एनएमआर। उसके बाद चलेंगे यूवी विजिबल, यूवी विजिबल तो हम कलर के लिए, कलर मतलब डबल बॉन्ड आपको पता होगा ना, यूवी मतलब कि उसमें वुडवर्ड फिशर रूल, मतलब सब कुछ यूवी विजिबल में हम नॉर्मली वुडवर्ड फिशर रूल से हम कैलकुलेट करता है इसका लैम्डा मैक्स कितना है, मतलब कि लैम्डा मैक्स कितना है ना, यूवी विजिबल पे। इसमें क्या है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है ना, इसका ये तो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी आता है, इलेक्ट्रॉनिक मतलब कि देख डबल बॉन्ड में क्या होता है भाई, डबल बॉन्ड तो इलेक्ट्रॉन से होता है ना, इलेक्ट्रॉन्स बाय इलेक्ट्रॉन्स, है ना, तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है। तो हम यूवी विजिबल पे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ता है, ठीक है, बस इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ता है। इसका मतलब कि माइक्रोवेव होता है ना, माइक्रोवेव मतलब कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आता है कि नॉर्मली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव में इतना इतना डिफरेंट डिफरेंट ऑफ एनर्जीज होता है, उसमें हम एनर्जीज को डिफरेंट डिफरेंट नाम दिया है। उसमें हम माइक्रोवेव को, हम उसमें माइक्रोवेव का नाम एक एनर्जी को दिया है, और एक एनर्जी को इंफ्रारेड दिया है, और एक एनर्जी को रेडियो फ्रीक्वेंसी, मतलब कि उस मतलब देख रेडियो फ्रीक्वेंसी का बहुत कम आता है, उसके बाद माइक्रोवेव, उसके बाद इंफ्रारेड, उसके बाद यूवी, मतलब कि ऐसे मतलब अकॉर्डिंगली हम दिया है कौन सा किसमें है, कौन सा किसमें कम है, मतलब ऐसे अरेंजमेंट करके हम उसको नाम दिया है। उसके बाद वो वाला मतलब माइक्रोवेव क्या का मतलब कि नाम तो दिया भाई, नाम से क्या करना है, हमको क्या लेना देना है नाम से, हमको नाम से ये करना है कि माइक्रोवेव उसका काम क्या है, उसका तो रोटेशन, मतलब कि एक मॉलिक्यूल को रोटेट कर लेता है, मतलब कि एक मॉलिक्यूल होता है कि हम लेंगे, मतलब वाटर है, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल है H2O, इसको रोटेटिंग मतलब कि रोटेट होना, मतलब कि देख रोटेट होना मतलब C2 एक्सिस पे रोटेट कर लेंगे हम, ठीक है, मतलब कि पूरा रोटेशन कैसे, मतलब ऐसे ट्रांसलेशन मोशन, उधर रोटेशन मोशन की ये तो माइक्रोवेव करता है काम, ठीक है। उसके बाद इंफ्रारेड है, वाइब्रेशनल, मतलब कि वाइब्रेशनल कैसे करता है, मतलब क्या मतलब वाइब्रेशन हुआ हमारा। उसके बाद रेडियो फ्रीक्वेंसी एनएमआर फाइंड करता है, उसके बाद विजिबल ट्रांजिशन करता है, उसके लोन पेयर है इसके पास, ये ट्रांजिशन कर लेगा, ट्रांजिशन, ठीक है, बस बस हमको ये चीज ध्यान रखना है कौन सा क्या है, ठीक है। अभी चलेंगे हम क्वेश्चन के ऊपर, ये चीज तो जरूरी है, ठीक है। अभी पूछ रहा है कि spectroscopic transition leading to rotation of a molecule will appear at the region of the electromagnetic radiation, electromagnetic spectrum। इसमें कौन सा आता है, इसमें देख मैंने बोला रेडियो फ्रीक्वेंसी किसके आता है भाई, रेडियो फ्रीक्वेंसी कौन सा भाई, रेडियो फ्रीक्वेंसी में रेडियो फ्रीक्वेंसी एनएमआर को बोला, अल्ट्रावायलेट किसके बोला, यूवी, मैंने बोला तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। आईआर किसके लिए बोला, वाइब्रेशनल के लिए बोला ना, आईआर में वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, वाइब्रेशनल। सो बचा हुआ कौन सा है, माइक्रोवेव, हाँ माइक्रोवेव है रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए, ठीक है, रोटेशनल, बस हो गया। चल ठीक है गाइस, हम कंटिन्यू कर लेंगे फ्रॉम 19 क्वेश्चन, from 19 we can continue it in the next lecture. So thank you everyone, have a nice day.